Very good afternoon to all of you. Now I am going to take mock interview of one of my student for IDBI PGDBF. Okay, recently they have declared the written result. Just try to listen the mock interview. Panel will ask very easy questions. Just be cool and calm. They will ask question related to IDBI, situation based question, gap year, your subject, daily newspaper and all. Okay, so if you are interested, just text me on my number 7503235358. Arpita ma'am will connect you guys to me. Start from may I come in, sir? May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. Okay, प्रणय, हमारे राष्ट्रपति का नाम आपके जैसा नहीं था, आपसे मिलता जुलता था. कौन थे हमारे राष्ट्रपति पहले भूतपूर्व जो अब नहीं रहे? सर, ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी. ऑनरेबल लेट प्रणब मुखर्जी. Honorable late Pranab Mukherjee. Briefly introduce yourself. Sir, my name is Pranay Prasun and I am born and brought up in Patna, Bihar, but my native place is Betia, West Champaran. I have done my schooling from St. Dominic Saviour's High School, Patna, and after that my class 12 from Himalayan Public School, Patna, and after that I have done my graduation in BSc Electronics Honours from AN College, Patna, and after that MBA in Marketing from AN College, Patna itself. And my father is a stockbroker and an astrologer, and my mother is a homemaker. I have two elder sisters, both are working women, and my hobby is to play and watch cricket and listening to music. Okay, you told that you are from Betia. Yes, sir. Betia is nearby. Betia is famous for the cultivation of नील की खेती. पहले जाना जाता था नील की खेती के लिए. Yes, sir. Indigo. कुछ बताएंगे इसके बारे में? Yes, sir. सर नील की खेती वो इंडिगो इस समय वो चंपारण सत्याग्रह भी सर इस पे हुआ था. 1917 में जब महात्मा गांधी 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से, 1917 में सर चंपारण सत्याग्रह हुआ था. वहाँ पे महात्मा गांधी ने देखा कि मतलब जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो लोग मतलब अत्याचार कर रहे हैं पीजेंट्स पे, जितने भी वहाँ स्मॉल फार्मर्स हैं उनके ऊपर, तो उन्होंने वहीं से वो चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था. ओके, इन विच ईयर यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? Sir, I completed my graduation in year 2023. Year 2023. Okay. Yes, sir. After that, you started preparation for banking exams. Yes, sir. And simultaneously, I pursued MBA. MBA also means earlier you have completed your engineering, then MBA. No, sir. BSc Electronics, not engineering. BSc Electronics. From which college? AN College. AN College, Patna. Yes, sir. Okay, and you have completed your MBA marketing or it's still pursuing? Still pursuing. I'm in my last semester. In few days, this last semester exam will be going to held. Okay, okay. If you remember, what are the subjects of your graduation? One or two subjects? Yes, sir. I remember my subject. There are 4 papers. The first one is honors paper in electronics. There are 2 to 3 subjects like digital electronics, electronic circuits, and then after that there are optional subjects like physics, maths. Okay. And in I am going to ask some questions from these subjects. Okay, you heard about AC and DC current? Yes, sir. Alternating current and direct current. Difference? Sir, alternating current are the currents which have no barrier, which means घर में जितने भी अप्लायंसेज होते हैं एसी है सब, उसमें हम लोग सर मोस्टली ऑल्टरनेटिव करंट यूज़ करते हैं, बट जितने भी बड़े बड़े जगह पे होता है वहाँ पे सर डीसी यूज़ किया जाता है. ओके, रिन्यूएबल सोर्स से बिजली चलता है तो 1-2 सोर्स का नाम? रिन्यूएबल सोर्स सर आई कैन नॉट रिकॉल एट दिस मोमेंट. घर में कहीं से बिजली नहीं आ रहा है फिर भी लाइट जल रहा है, आप इलेक्ट्रिक के स्टूडेंट हैं, कैसे जल रहा होगा घर पे लाइट? क्या लगा रखा उस बंदे ने? कॉमन सेंस लगाओ यार. ये सर वो तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी ये सब पूरा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर से सर. ट्रांसफार्मर से उसके घर में लाइट वाइट नहीं आया है, फिर भी उसके घर में टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, सब कुछ है. सोलर पावर. तो फिर ये पहले बोलना था ना. यस सर. सोलर पावर रिन्यूएबल एनर्जी में आया है ना सोलर पावर. यस सर. ओके, लिटिल बिट. आप मुझे एकदम कूल एंड काम रहे, नर्वस हम जान नहीं ले रहे हैं, ठीक है? आप मुझे ये बताएं कि
इंजीनियरिंग करने के बाद मतलब वही अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग नहीं मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आप MBA कर रहे हैं, तब तक अपने प्राइवेट जॉब में जॉब क्यों नहीं स्टार्ट किया, मतलब बैंकिंग के फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? सर बिकॉज बैंकिंग का मैंने देखा है कि हाँ उसमें कुछ मतलब उसका खासियत, जैसे कि मेरे घर में भी जैसे मेरी दोनों एल्डर सिस्टर जो है, बड़ी वाली सिस्टर जो वो SBI में ब्रांच मैनेजर है और छोटी वाली सिस्टर बैंक ऑफ इंडिया में हेड कैशियर है, और बाकी और भी बहुत रिलेटिव है मेरे जो कि बैंक में है, तो मैंने देखा है ओके, कि बड़ी बैंक वाली का। दीदी SBI में ब्रांच मैनेजर है, कहाँ पे? सर सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में। कौन से ईयर से जॉब में लगी थी वो? सर वो 2018 में उन्होंने 10-12 एग्जाम क्रैक किया था, उसमें पहले उन्होंने ज्वाइन किया IBPS क्लर्क कॉर्पोरेशन बैंक में, वहाँ 6 महीने रही, फिर SBI PO का रिजल्ट आ कब गया, बोला वो आपने? क्लियर हो गया, तो फिर इसमें 2018। 2018, ठीक है। आप प्रणय मुझे ये बता दें कि अभी आप MBA परस्यू कर रहे हैं, व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग एंड व्हाट आर द 3 एडिशनल P's, व्हाट आर द 3 एडिशनल P's ऑफ मार्केटिंग? सर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, एंड द प्रोडक्ट, 3 प्लेस, P's आर प्राइस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, एंड द 3 P's आर देख लेना, people। 7 P's देख लेना, एक दो मेरे से भी मे बी ऊपर नीचे हुआ हो, तो 3 P's प्लस सर ये सही था। 4 P's प्लस 3 एडिशनल P's में क्या है? एडिशनल में पीपल, फिजिकल एविडेंस, एंड वन मोर प्रोसेस में भी। ओके ओके, एज यू आर ए ग्रेजुएट देन यू आर परसुइंग MBA, तो आप हमारे लिए एसेट कैसे बनेंगे? हाउ यू विल बी द एसेट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन? कोई नॉर्मल ग्रेजुएट ही आ रहा है लेकिन आप MBA किए, इतनी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके, तो आप हमारे लिए एसेट्स कैसे बनेंगे प्रणय प्रसून सर बाबू? ऐसे मैं ऐसे बन सकता हूँ कि जैसे कि ये जैसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं IDBI के, बहुत से स्कीम्स, वो सबको अगर मार्केट में अगर लॉन्च करना हुआ, लोगों के बीच में जाके समझाना हुआ कि हाँ इस प्रोडक्ट को ऐसे यूज़ करेंगे, इसका बेनिफिट ये है, तो वहाँ पे मैं अपना MBA का नॉलेज लगा सकता हूँ, स्पेशली मार्केटिंग का जो मेरी स्पेशलाइजेशन है। और जैसे कि अभी मैं PGDBF में मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे फाइनेंस के बारे में पढ़ना होगा, तो मैं फाइनेंस और मार्केटिंग दोनों का नॉलेज मैं मिक्स करके चीज़ों को मैं और अच्छे से टैकल कर सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके। ओके ओके प्रणय, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि 2019 में LIC का IDBI के साथ कुछ रिलेशन बन गया। यस सर, कुछ बताएंगे इसके बारे में? यस सर, LIC ने सर कुछ शेयर खरीद लिए IDBI के। IDBI जो था बहुत NPA में सर चला गया था, उस रीजन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LIC और SBI को बोला था कि अपना शेयर कुछ IDBI के शेयर को कुछ परचेज कर ले, तो उसमें LIC ने सबसे ज़्यादा लिया था 51% के अराउंड में भी, तो LIC के अंदर मतलब IDBI सर आ गया उसके बाद से LIC। आपको पता है कि आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगा, 9 मंथ्स का इसमें ट्रेनिंग होगा PGDBF में? यस सर। इस जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या जानते हैं, बताइए कुछ। प्रोसेस, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, अब क्या होगा? सर इसके बाद से हम PGDBF के प्रोग्राम में हमें नोएडा भेजा जाएगा, नोएडा सेंटर पे, वहाँ पे हमारी 9 मंथ की ट्रेनिंग होगी जिसमें क्लासेस होंगी, फिर हमें एग्ज़ाम भी देना होगा, एग्ज़ाम भी कुछ क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद से सर हमें भेज दिया जाएगा ब्रांच ट्रेनिंग पे, फिर हमें भेजा जाएगा इंटर्नशिप के तौर पे। इसके बाद से फिर सर हमारी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी 9 मंथ्स के बाद। ओके, बिहार में आपने बताया जिस जगह से है, तो आपके एरिया का MLA कौन है, पता है नाम उसका? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देख लीजिएगा, बिहार में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और बिहार से झारखंड कौन से ईयर में अलग हुआ? सर बिहार से झारखंड अलग हुआ था सर इन द ईयर 2002। ओके, और डिस्ट्रिक्ट बताइए, CM बताइए, गवर्नर बताइए, इलेक्शन किस ईयर होगा वो बताइए। सर बिहार के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नीतीश कुमार जी हैं, एंड गवर्नर श्री मोहम्मद आरिफ खान जी हैं, और सर इलेक्शन इसी साल होने वाला है नवंबर में 2025 में, ये विधानसभा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ओके, क्वेश्चन ये है बेटा, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स के तहत ग्रामीण लोगों को पैसा देती है ना? यस सर। हम आपकी मान लीजिए पोस्टिंग करते हैं नॉर्थ इंडिया में ही किसी गांव में आपकी पोस्टिंग करते हैं, तो आपको लोगों को अवेयर करना है कि बैंक में अकाउंट होना कितना ज़रूरी है। अब तक उनका अकाउंट साहूकारों के पास था, हम भी उस ग्रामीण में से एक बंदे हैं। चलिए Yes, sir. बड़े प्यार से, इजी क्वेश्चन है, क्लियर हो गया? यस सर। बैंक में अकाउंट होना क्यों सर, मैं जरूरी है,
फिनेंशियल इंक्लूजन क्यों ज़रूरी है, स्कीम्स वगैरह का कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं? यस सर, जैसे कि मैं उन्हें बताऊंगा वही फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पहले, तो उसके बाद से एक नेशनल मिशन स्कीम है फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही, जिसे प्रधानमंत्री जनधन योजना बोलते हैं। उसके बारे में मैं उन्हें पूरा ब्रीफ डिटेलिंग बताऊंगा कि उसका बेनिफिट कैसे है। जैसे उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ये सभी अवेलेबल है कि एक्सीडेंट होने के बाद भी आपको 1 लाख तक की वो लोन मिल सकती है। डेथ, किसी की फैमिली में डेथ हो गई तो उस पर 30,000 मिल सकता है। वो सब मैं पूरा उन्हें ब्रीफ में बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि जो पैसा अगर आप घर में रखते हो वो कल को कुछ भी हो सकता है, वो मतलब चोरी भी हो सकता है, बट अगर आप बैंक में रखोगे आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, गुड, X%, Y%। वेरी गुड। फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए कोई स्कीम लाया गया था 2014 में, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना। गुड, वेरी गुड। आप मुझे ये बताएं, आपकी हॉबी क्या है? सर, माय हॉबी इज टू प्ले एंड वॉच क्रिकेट एंड लिसन टू म्यूजिक। प्ले एंड वॉच क्रिकेट। नेक्स्ट ईयर का T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, किन दो देशों में? सर, इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका। ओके, अभी इंडिया का टेस्ट फॉर्मेट का कैप्टन कोई नहीं है, पता होगा आपको, अभी फिलहाल कोई नहीं है। यस सर। बनने वाला है। यस सर। ODI का और T20 का फॉर्मेट का कैप्टन कौन कौन है? सर, ODI का रोहित शर्मा ही है अभी, एंड T20 के सूर्य कुमार यादव हैं। कोई भी एक इंडियन एम्पायर का नाम बताइए जो इंडियन हो। सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी। ओके, हम आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी करते हैं, पैन इंडिया जॉब है ये, वर्कलोड कैसे मैनेज करेंगे और अपना खाना पीना और डेली ट्रैवलिंग? सर, खाना पीना और डेली ट्रैवलिंग तो सर अभी मैंने कुकिंग भी स्टार्ट किया है, साथ में मुझे कुछ डिशेस बनाने आते हैं जो कि डेली लाइफ में काम आते हैं। तो खाना पीना तो सर मैनेज हो जाएगा, बाकी रहना भी मैं कर लूँगा। सर, बैंक के पास ही मैं रूम देखूँगा, वहाँ पे से मतलब रहूँगा अपना। और बाकी ट्रैवलिंग तो फिर अगर हो सके तो मैं 2 व्हीलर मैं राइड करता हूँ, 4 व्हीलर भी मैं सर राइड करता हूँ, तो मैं अपने पास रखूँगा उस समय। यहाँ पटना से मैं वहाँ पे ले जाऊँगा, उसी से मैं सर बैंक अप डाउन करूँगा। व्हाट इज रेपो रेट? या टेल मी व्हाट इज रेपो रेट? कितना % है फिलहाल रेपो रेट? सर, रेपो रेट अभी 6% है। ओके, डेफिनेशन? सर, रेपो रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड मनी टू commercial banks. Okay. Repo rate is a rate at which a bank can take loan from RBI for short period of time against government security. Or yes. What sir. is priority sector lending? Sir, priority sector lending is the lending in India. There are some priority sector on which government focuses to मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए कि मतलब वो कुछ PSL को, उसके लिए सर उन्हें PSL को अच्छे से पढ़ लेना है। ओके ओके, आप अपने आप को आने वाले समय में कहाँ देखते हैं? क्या आपका शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल है प्रणय बाबू? सर, शॉर्ट टर्म गोल तो अभी यही है कि अभी मैं जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ साथ ही में, तो मैं अभी आने वाले शॉर्ट टर्म में तो देख रहा हूँ कि अभी मुझे IDBI में एज अ जॉब मिले। उसके बाद से अगर कुछ मैं लॉन्ग टर्म में मैं यही देखूँगा कि मैं एज अ मैनेजर, मैं एज अ एम्प्लॉई इस ऑर्गेनाइजेशन को कितने अच्छे से और आगे तक ले जा सकता हूँ, कितने। शॉर्ट टर्म गोल में चीज़ों को सीखना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म गोल में आगे से आगे जाना चाहूँगा। अभी एक नई बनी है RBI की डिप्टी गवर्नर, एक लेडी बनी है, क्या नाम है उनका? सर, ऑनरेबल पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता। और RBI के गवर्नर कुछ दिन पहले बने थे नए, क्या नाम है उनका? यस सर, सर श्री संजय मल्होत्रा। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। तकरीबन 14 मिनट के करीब मॉक हो चुका है। अब बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आराम से मॉक इंटरव्यू दें, हर चीज़ों की तैयारी करें, सब्जेक्ट हो, गैप ईयर हो, बैंकिंग हो, करंट हो। ओके, धीरे धीरे करके आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी नंबर पर मैसेज करके मैम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7503235358। गॉड ब्लेस यू ऑल।